Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will read about Black Beauty. I'm your teacher Shabana Jaman, and today we will read about Black Beauty. As you see in the picture, it is related to the story of a horse and the problems of animals which they faced in this unit. The horse is telling his own story when he was only 2 years old. Every student should pay attention towards reading and note down the important points which are very important for your reading, for your comprehension. First of all, we will read about its introduction. In this introduction, we learn about what type of story it is. This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820 to 1878. This excerpt mean कि ये जो excerpt है, excerpt का मतलब piece, यानी कि ये एक पूरा नॉवल है, उसमें से एक पीस लिया गया, एक हिस्सा लिया गया, एक पार्ट लिया गया, एक चैप्टर लिया गया है फ्रॉम द नॉवल. इस नॉवल जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी. As I already told you that the topic of the novel is Black Beauty, and it is written by Anna Sewell, and Anna Sewell is a female author. She was born on 1820 and then died on 1878. You should note down the topic Black Beauty and also its writer name Anna Sewell, its her date of birth and date of death, which is also included in your objective. The story is about a horse. This story is related to a horse, and you will see from this short piece, as I already told you, that excerpt means short piece. Short piece that is the story is told by a horse. The story is about a horse. ये story जो एक horse के बारे में है, and you will see from this short piece, और आप इस short piece से देखेंगे, यानी कि short से जो chapter लिया गया इसे आप देखेंगे, that is the story is told by a horse, कि ये जो story है ये एक horse बता रहे हैं, और उसमें जो क्या expression है वो writer एना सेवल की शामिल है. उसके अपने जो है ना एहसास और जज्बात जो वो एनिमल्स के साथ रखती थी, वो उसको एज अ हॉर्स उसमें शामिल कर रही है, हॉर्स के वे से. दिस पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पॉट. ये जो खास पैसेज लिया गया है वो कौन सी क्वेश्चन इसमें कौन से क्वेश्चन पे बात हो रही है, वो है ब्लड स्पॉट, यानी कि खूनी गेम. इसमें बताया गया है कि जानवरों के साथ किस तरह जुल्म किया जाता है, किस तरह अपनी इंजॉयमेंट के लिए हॉर्सेस को गलत वे से यूज़ किया जाता है, और उनको जो ना अपनी इंजॉयमेंट के लिए उनको हर्ट किया जाता है. बहुत से इनोसेंट जो एनिमल्स हैं जैसे हेयर है और स्टैग है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको हंट किया जाता है, और बहुत जालमाना तरीके से उनको हंट किया जाता है. और विच इज हंटिंग वाइल्ड एनिमल एज अ स्पॉट. और ये इसमें जो टॉपिक है, ये जो मेन थीम है वो है कि किस तरह जो है ना जानवरों के साथ जो है ना उसको एज अ स्पोर्ट हम यूज करते हैं, उसको गेम में किस तरह हम यूज करते हैं, और उनका उसमें कितनी डेथ होती है, कितने जानवर मरते हैं. इवन टुडे दिस इज अ सब्जेक्ट ऑन विच पब्लिक इज मच डिवाइडेड.
ये तो बात हो रही थी 1820 की, जब जानवरों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता, लेकिन आज भी ये जो सब्जेक्ट है इस पे पब्लिक मच डिवाइडेड, इस पे भी अभी तक लोगों का आपस में बहुत सारी मुख्तलिफ राय, क्योंकि कुछ लोग अभी भी जानवरों को, हॉर्सेस को और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एज अ स्पॉट के तौर पे यूज कर रहे हैं. स्टिल आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड what is this. And this is the introduction of the chapter. In this chapter you can in this introduction you can know that what is happening in the story, what type of story it is, and you should also note down the important points. Read this introduction 2 to 3 times, because if you read it once or 2 times, you can understand it, you can learn new vocabulary, you can get the main idea of this novel, of this chapter. So don't negate it and read it 2 to 3 times, which is very necessary. Hope that everyone is understanding. Now, next, the story is starting from here. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. Before I was 2 years old, 2 साल होने से पहले, यानी कि अभी मैं 2 साल का भी नहीं था. A circumstance, इस तरह के हालात happened, पेश आए, which I have never forgotten, जिनको मैं कभी भूल नहीं पाया. ठीक है, अब आई किसके लिए यूज हो रहा है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो स्टोरी है ये आप बीती है एक हॉर्स की. वो हॉर्स अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं 2 साल से भी कम था, कभी 2 साल भी मेरे पूरे नहीं हुए थे, 2 साल से पहले का ये जो वाकया है, इस तरह के हालात, इस तरह का वाकया, सर्कमस्टांस का से हालात मतलब होता है यहाँ वाकया के तौर पे हमने एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको मैं कभी भी भूल ना सका या कभी अभी भी भूल नहीं पाया हूँ. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का स्टार्ट था, यानी कि बिल्कुल जब स्प्रिंग स्टार्ट पे होती है. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट. तो एक लिटिल फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मीनिंग है टाइनी आइस क्रिस्टल, यानी कि हल्की सी बर्फ पड़ी हुई थी. इन द नाइट, रात में. एंड लाइट मिस्ट, और हल्की सी जो मिस्ट होती है, मिस्ट का मतलब है फॉग, धुंध. स्टिल हंग ओवर द वुड्स. अभी तक जो है ना, वो वुड्स का मतलब होता है जंगल, दरख्त भी कह सकते हैं, जो कि हल्की सी जो बर्फ है और जो धुंध है वो छाई हुई थी वुड्स पे, जंगल में. और मीडोज चरागा, जहाँ जानवर जाके अपना चारा वगैरह हासिल करते हैं वहाँ. तो अभी तक जो ना अर्ली स्प्रिंग टाइम था, ये आपको याद, इसको भी अंडरलाइन करें कि टाइम कौन सा दिया गया है. और उस वक्त क्या थी, हल्की सी बर्फ भी पड़ी हुई थी, और क्या कह सकते हैं कि और मिस्ट और धुंध भी छाई हुई थी वुड्स में और मीडो में, जंगल में और चरागा में. I and the other colts were feeding at the lower part of the fields when we heard, quite in the distance, what sounded like the cry of dogs. I and the other colts, वो कहता है मैं और दूसरे colts. क्या होता है colts का मतलब होता है young male horse. A young male horse, नौजवान नर घोड़ा. मैं और नौजवान जो नर घोड़े थे वर फीडिंग, वो फीड कर रहे थे एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के नीचे वाले हिस्से में. व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, बिल्कुल फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, ऐसी साउंड के जो कि डॉग की सी साउंड हमने सुनी, कुत्तों की भौंकने की आवाज हमने सुनी.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करें, डिफिकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग लिखते जाएं। इंग्लिश में भी मैंने ये आपकी फैसिलिटेट करने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स को साइड पे लिखा हुआ है। 1 2 दे के नंबरिंग भी दी हुई है, आप इजीली इस वर्ड्स के मीनिंग को भी फाइंड कर सकते हैं। और मजीद अगर आपने उर्दू में भी आपको मैं बताई जा रही हूँ, वो भी आप नोट डाउन करते जाए। The oldest of the cow raised his head, और इनमें से जो सबसे बूढ़ा घोड़ा था ना, कॉल्ट्स, मतलब नौजवान, जो हमारी ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट्स, जो सबसे इनमें से हम घोड़ों में से जो सबसे बड़ा था, रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर उठाया, पिक्ड हिज ईयर, और अपने कान खड़े किए, एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, ये हॉर्न्स हैं, ये शिकारी कुत्ते हैं। हॉर्न्स मतलब क्या, हंटिंग डॉग्स। एंड immediately cantered off, followed by the rest of us, the upper part of the field. और वो जल्दी, इमीडिएटली का मतलब है फौरन। कैंटेड ऑफ का क्या मतलब है, मूव्ड इजीली, आराम से वो चले गए। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और हमें वो फॉलोड करते हुए रेस्ट ऑफ अस, हम में से भी, टू अपर पार्ट ऑफ द फील्ड्स, जो फील्ड्स के ऊपर वाले हिस्से में, वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, जहां हम देख सकते थे। हेज क्या होता है, जंगला, फेंस, एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और इससे दूर, बियॉन्ड का मतलब है इससे दूर, हम कहीं और फील्ड भी देख सकते थे। माई मदर, मेरी माँ, एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स, और एक बूढ़ा राइडिंग हॉर्स जो था, ऑफ आवर मास्टर, जो कि हमारे मास्टर का था, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी पास ही खड़े थे। एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानते थे, इसके बारे में सब कुछ जानते थे। आप कैसे जानते थे? बिकॉज दे वर ओल्ड, दे हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट हैपेंड in this way when there was sound of dogs, barking dogs, and there is hustle and bustle in the forest, so there is something going to happen. So इस पैराग्राफ में आपने ये पढ़ा है कि एक जो यंग हॉर्स है, मेल हॉर्स है, कॉल्ट, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। कहता है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाक्य पेश आया कि जब मैं 2 साल से भी कम था, तो एक ऐसा वाक्य पेश आया जिसको मैं कभी भूल ना पाया। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का टाइम था, बिल्कुल जब स्प्रिंग अर्ली स्टेज पे होती है, बिल्कुल नई स्प्रिंग आ रही होती, मतलब स्प्रिंग का जो मौसम बहार का होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग पे होता है। तो जब उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की की सर्दी भी होती है, थोड़ी फॉग भी होती है, और उसके अलावा जैसे हम सुबह सवेरे उठें तो थोड़ी थोड़ी बर्फ सी भी हमें नजर आती होती है, क्रिस्टल टाइप जो होती है। और क्या होता है, और उसमें जो वुड पे, जो वुड और मिडोज में अभी तक वो मिस्ट और जो फ्रॉस्ट थी वो जमी हुई थी। आई एंड अदर कॉर्ड्स वर फीडिंग एट, और मैं, वो कहता है कि मैं और जो मेरे दूसरे कॉर्ड्स थे, जो कंपेनियंस कॉर्ड्स थे, वो क्या कर रहे थे, लोअर पार्ट्स में, फील्ड के जो लोअर पार्ट है ना, उसमें वो क्या कर रहे थे, फीड कर रहे थे। जब उन्होंने अचानक फासले पे एक आवाज सुनी, जो डॉग्स की क्राई की आवाज थी, और जो उनमें से सबसे जो बूढ़ा सबसे, मतलब बूढ़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो यंग कॉर्ड में से जो सबसे बड़ा था, उसने अपना सर उठाया और उसने अपने कान खड़े किए, और उसने कहा कि देयर आर द हाउंड्स, कि ये हाउंड्स हैं। एंड इमीडिएटली कैंटेड ऑफ, और वो जल्दी से जो है ना वहां से चले गए। followed by the rest of us to upper part of the field, और अपर पार्ट जो था फील्ड का ऊपर वाला हिस्सा, उस पे चले गए, और साथ हम भी उनको फॉलोड कर रहे थे, यानी कि जैसे वो पीछे जन, हम भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे कि देखेंगे क्या होने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि फिर वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, फिर हमने हेज में से, जो एक जंगला सा बना हुआ था, उसमें से हमने देखा बहुत सारे फील्ड थे, यानी कि उस जंगले से हमने पहले देखा ना, थोड़ी दूर होके, मतलब उससे बियॉन्ड, उससे आगे हमने देखा, दूर से उसके जो आगे आगे जो जगह थी, उसमें आगे क्या था, बहुत सारे फील्ड्स थे, खेत थे। मेरी माँ ने, और एक और जो राइडिंग हॉर्स था, वो जो हमारे मास्टर का था,
वो भी पास ही खड़ा था और वो ऐसा लगता था कि उनको सब कुछ पता है। अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ऑलरेडी गिवन है, आप इनको पॉइंट आउट करें। अगर आप उसके उर्दू मीनिंग भी जानना चाहते हैं तो सर्कमस्टांस का मतलब वाकया होता है, और फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, बर्फ, कहर, और मिस्ट का मतलब धुंध, कॉल्ट जवान घोड़े, और प्रिक्ट खड़ा करना, अपनी मतलब कान खड़े करना, या प्रिक्ट का मतलब यहाँ पे कास्ट टू स्टेन इन पॉइंट अपवर्ड, इनके ऊपर की तरफ देखना या चुकन्ना हो जाना। और हाउंस शिकारी कुत्ते, और कैंटर्ड ऑफ का मतलब है जल्दी से चले गए। ऐसे कैंटर्ड ऑफ के और कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ जो है ना इसका मीनिंग जल्दी से, इजीली गो, इजीली मूव्ड। आई होप दैट एवरीवन इज getting my point, and I explain everything, each and everything very clearly. Hope that everyone is understanding and noting down the important points, words, meanings, and also the important points which can be included in your objective. You should know about the age of the horse. Okay. Now the next paragraph. They have found a hare, said my mother, and if they come this way, we shall see the hunt. They have found a hare. उनको एक हेयर मिल चुका है, said my mother, मेरी माँ ने कहा। इसको अंडरलाइन करें क्योंकि सम टाइम आपको पेपर्स में ये आ जाता है कि ये डायलॉग किस कैरेक्टर ने कहा। They have found a hare, यहाँ आपने लिखना है मदर। ओके, सो एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट। और उनकी जो माँ, इनमें से जो माँ है उस कॉल्ड की, वो कहती है कि उनको हेयर मिल चुका है, और इफ दे कम दिस वे, अगर वो इस रास्ते, जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, अगर आए तो हम देखेंगे कि वो किस तरह इसको हंट करते, किस तरह इसका शिकार करते। And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to ours. और soon और जल्द ही जो डॉग्स थे वो were all tearing, वो सारे क्या कर रहे थे। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, चीरना। यहाँ इसका मतलब होता है चीरना, कोई चीज तबाह करना। फील्ड्स ऑफ यंग वीट, यंग वीट क्या होता है, मतलब अभी जो नई नई गंदम उगी होती है उसको खराब करते हुए जा रहे थे। कौन जा रहे थे? डॉग्स। और नेक्स्ट टू आवर्स, हमसे जो नेक्स्ट आगे की तरफ जा रहे थे। I never heard such a noise as they made. मैंने इससे पहले ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी जो उन्होंने आवाज इस तरह की शोर कर रहे थे डॉग्स। They did not bark, वो भौंके नहीं, nor howl, और ना ही वो चीखे, nor whine, और ना ही उन्होंने जोरदार आवाज निकाली। या क्या कहते हैं, वाइन का क्या मतलब हो सकता है कि ऐसी आवाज, दुख भरी आवाज जिससे आपको ऐसा लगे कि किसी को तकलीफ है, दर्द भरी आवाज, इस तरह की कोई आवाज नहीं निकली। बट केप्ट ऑन यो यो ओ ओ, बस क्या आवाजें निकाले जा रहे थे डॉग, यो यो ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपनी आवाज की ऊंची सतह से, मतलब जितना उनकी आवाज का लेवल था, जितना वो ऊंचा बोल सकते थे, इतनी वो उस लेवल से बोल रहे थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक, उसके बाद बहुत सारे आदमी आए जो कि हॉर्स की बैक पे बैठे हुए थे। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट, कुछ उनमें से ग्रीन कोट में थे। ऑल गैलोपिंग एट फास्ट एज दे कुड, और जो सारे जो आदमी थे ना जो अपने हॉर्सेस पे बैठे हुए थे, वो अपने हॉर्सेस को इतना तेज दौड़ा। गैलोपिंग का मतलब क्या है कि उनको तेज दौड़ाना, उनको तेज दौड़ा रहे थे इतना जितना कि वो दौड़ा सकते थे। The old horse snorted and looked eagerly after them. उनमें से जो ओल्ड हॉर्स था वो स्नॉटेड, उसने अपनी नाक से आवाज निकाली, एंड लुक्ड ईगरली, और उसने बहुत बेताबी से देखा आफ्टर देम, उनके जो पीछे था ना, उनको जो उससे पीछे थे ना, उनको बहुत ज्यादा वो बेताबी से देख रहा था कि ये मतलब किस तरह जा रहे हैं। एंड वी यंग कॉर्ड्स वांटिंग टू बी गैलोपिंग विद देम। आप जो कह रहे हैं कि हम में से जो ओल्ड हॉर्स थे वो बहुत ईगरली दे, वो अपनी स्टोरी भी साथ बता रहे हैं ना, कि साथ वो हैपनिंग बता रहे हैं और साथ अपनी स्टोरी अपने साथ बता रहे हैं कि हम लोग क्या फील करते। कहते कि हम में से जो यंग
ओल्ड हॉर्स थे वो क्या कर रहे थे कि वो बहुत ईगरली देख रहे थे उनको, कि जो हॉर्सेस को वो गलॉप कर रहे थे, जो तेजी तेजी से भाग रहे थे ना, तो ओल्ड हॉर्स उनको बहुत ईगरली देख रहे थे। और हम जो यंग कॉल्स थे ना, हम भी उनके साथ गैलॉप करना चाह रहे थे, यानी कि हम भी तेज भागना चाह रहे थे। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लॉड डाउन, लेकिन वो जल्द ही अवे का मतलब दूर चले गए, इनटू द फील्ड्स, फील्ड्स में, खेतों में, लोअर डाउन, नीचे की जानिब। हियर इट सीम दैट इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, यहाँ ऐसा लग रहा था कि वहां ये रुक जाए, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ रुकने के लिए ठहरे हैं या रुक चुके हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, जो डॉग्स हैं उन्होंने भौंकना छोड़ दिया, मतलब भौंकना बंद कर दिया। लेफ्ट ऑफ का मतलब क्या है? बंद कर दिया, स्टॉप हो गए, चुप हो गए। एंड ड्रेन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और हर तरफ भागने लगे, अपनी जो नोजेस है उसको ग्राउंड की तरफ कर दिए, जैसे नोज से वो कुछ स्मेल कर रहे हैं, कोई चीज वो कैप्चर करना चाह रहे हैं, या वो इसे अपने शिकार को वो सूंघ रहे हैं, कि अपनी जमीन में नाक को ये इस तरह कर रहे हैं कि ताकि हमें अपना कोई शिकार मिल सके। दे हैव लॉस्ट सेंट, उनको खुशबू जो है ना, उनको खुशबू नहीं, जमीन से खुशबू नहीं आई, वो खो चुके थे खुशबू। सेड द ओल्ड हॉर्स, हम में से जो ओल्ड हॉर्स था उसने कहा कि अब इसको सेंट नहीं आ रही, जो अपना शिकार, जो जो डॉग्स हैं वो अपना शिकार ढूंढ रहे थे। तो अचानक जो है ना, उनको जब जमीन में वो नाक जमीन की जानब करके चल रहे थे, तो उनको वो खुशबू जो कि वो देख रहे थे कि पीछे से उनको वो खुशबू आ रही थी अपने शिकार की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उनको कहीं वो गुम हो गई, क्योंकि वो जो शिकार था वो उसने अपना रास्ता बदल दिया। Perhaps the hare will get off, क्यों? Perhaps का मतलब शायद के जो घोड़ा था, शायद के जो हेयर थी वो क्या थी, वो गेट ऑफ, उसने वहां से छुटकारा हासिल कर लिया था, या वहां से स्केप। गेट ऑफ का मतलब है वहां से चली गई, खरगोश जो है ना वहां से गेट ऑफ हो गया था, स्केप कर लिया था, उसने आपको बचा लिया था उनसे, उसने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया, क्योंकि वो तो उसकी खुशबू सूंघते सूंघते उसका पीछा करते उसके तरफ चले गए। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि वो उसको उन्होंने उसकी खुशबू को नहीं पाया, तो वो, इसका मतलब यही है कि वो जो हेयर है वो यहाँ से चला जाता। नेक्स्ट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अब आपने देखा है कि जो शिकारी कुत्ते हैं वो किसका शिकार कर रहे थे, वो एक हेयर को चेज कर रहे थे। और साथ में कमेंट्स भी हैं कॉर्ड्स, यंग कॉर्ड्स के भी और ओल्ड कॉर्ड्स के भी। और जो यंग कॉर्ड्स की जो मदर है वो कहती है कि वो अगर इस रास्ते से आए तो हम हंट्स को देख सकेंगे। फिर वो अचानक ही जो डॉग्स थे वो फील्ड्स में आ गए और उन्होंने फसलों को तबाह किया, और जो यंग वीट गंदम उगी हुई थी उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। और जो हॉर्स अपनी स्टोरी बता रहा है वो कहता है कि आई जो यूज हो रहा है वो हॉर्स अपने लिए यूज कर रहा है, कि अपनी स्टोरी बता रहे हैं। जैसे आप बीती के आप बीती, जिसको उर्दू में कहते हो, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं इससे पहले मैंने इस तरह की साउंड कभी नहीं सुनी थी। फिर वो ना भौंक रहे थे, ना वो शोर मचा रहे थे, ना वो आह भरी आवाज निकाल रहे थे, वो सिर्फ यो यो ओ की साउंड निकाल रहे थे। तो इसके बाद नंबर ऑफ मेन जो है ना वो आए हॉर्स बैक पे, और वो कुछ ग्रीन कोर्स में थे, कुछ गैलोपिंग कर रहे थे, अपने हॉर्सेस को फास्टली मूव कर रहे थे। और जो हम में से जो ओल्ड हॉर्स था वो कह रहा था कि काश में भी जो उनको बहुत ईगरली देख रहा था, और जो यंग हॉर्स थे तो वो भी उनके साथ तेज दौड़ना चाहते थे, बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लॉर्ड डाउन। लेकिन क्या हुआ कि अचानक ही वो नीचे वाली फील्ड्स पे चले गए। अब आपने पूरी पैराग्राफ को पढ़ लिया है, मैंने 2-3 दफा आपके लिए, और वर्ड्स मीनिंग भी आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए हमने साइड पे नंबरिंग वाइज किया हुआ है। तो आपने इसको बार बार पढ़ना है, 2 से 3 दफा पढ़ें, और जो वर्ड्स नहीं समझ आ रहे उनको बार बार पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन भी अपनी इम्प्रूव करें। ये ना हो कि जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको लफ्ज पढ़ना ना आए। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको समझ आने चाहिए। स्नॉटेड को पढ़ें, गैलोपिंग को करें, उसके अलावा वाइन, टियरिंग,
और उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और ये जो वर्ड्स मीनिंग जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए, इनके आपको स्पेलिंग भी आने चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिक्टेशन में भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हियर आई सेड, क्या हेयर, आई सेड मैंने कहा, ओह आई डोंट नो व्हाट हेयर, मैं नहीं जानता कौन सा हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड। अब वो कहता है कि मैंने पूछा कि क्या हेयर, उसको बात समझ नहीं आ रही थी, तो उसने तो उसकी माँ ने कहा आई डोंट नो व्हाट हेयर, मुझे नहीं पता कि कौन सा हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड। इसमें से लाइकली इनफ के यानी कि ये काफी है, इट मे बी कि ये हो सकता है कि हमारे जो हेयर्स हैं, जो जंगल में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उनमें से कोई एक हेयर हो। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मेन टू रन आफ्टर। कोई सा भी जो हेयर जो उनको अगर मिल जाता है, दे कैन फाइंड, अगर उनको मिल सकता है, दे कैन फाइंड विल डू, वो ऐसा करेंगे फॉर द डॉग्स, डॉग्स के लिए, मेन टू रन आफ्टर, आदमी उसके पीछे भागे। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सा हेयर, तो मेरी जो मदर थी उन्होंने कहा कि कोई सा भी हेयर हो सकता है, जंगल में कितने ज्यादा हेयर्स, उनमें से कोई सा भी हेयर होगा, ठीक है। और अगर वो उनको मिल सकता है तो वो क्या करेंगे कि वो डॉग्स को उनके पीछे लगाएंगे उस हेयर के, और आदमी उसके उनका पीछा जो ना डॉग से पीछे आदमी होंगे, वो उसको भगा रहे होंगे। And before long, the dogs began their yo-yo, yo-yo, oh, oh, again and back. They came all together at full speed. And before long, और काफी देर बाद, the dogs began their dogs ने दोबारा शुरू began their dog ने शुरू की their yo-yo sound, यानी दोबारा yo-yo करने लगे। Again and back they came all together at full speed. और बैक और दोबारा मतलब उन्होंने ये अपनी साउंड निकालना शुरू की, एंड दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और दोबारा जो है ना फुल स्पीड के साथ इकट्ठे मतलब बोलने लगे। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडो, और सीधे मीडो, जो हमारी मीडो थी, जो चरागाह थी, उसकी तरफ जा रहे थे। एट द पार्ट वेयर द खाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रूक, और जहाँ पे क्या थी, वो सीधा जा रहे थे उस मीडो की तरफ, जहाँ के जो कि पार्ट था वेयर द हाई बैंक, जहाँ के बहुत हाई बैंक था, किनारा था नदी का, एंड हेज ओवर हैंग द ब्रूक, और ब्रूक का मतलब स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी जो नदी थी, उसके ऊपर एक हेज, हेज का होता है फेंस, जंगला, एक जंगला लगा था जो ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब फैला हुआ था ब्रूक, ब्रूक के ऊपर, नदी के ऊपर। अब वो जो डॉग थे वो स्ट्रेटली जाने लगी उस वे की तरफ जहाँ एक नदी का किनारा था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा जो ना ह्यूज टाइप जो ना वो लगा हुआ था फेंस, जंगला। नाउ वी शैल सी द हियर, अब हम हेयर को देखेंगे। said my mother, मेरी माँ ने कहा। And just then a hare wild with frights rushed by and made for the wood. और फिर just और फिर then a hare, फिर एक hare आया वाइल्ड विथ फ्राइट, जो कि बहुत ज्यादा, वाइल्ड का मतलब होता है मतलब अपना होश आवाज खो देना, सेंसेस में नहीं होना। फ्राइट का मतलब है खौफ में, रश्ड तेजी से भागा, बाय एंड मेड फॉर द वुड। और फिर उसी लम्हे क्या हुआ कि एक हेयर आया जो कि बहुत ज्यादा खौफजदा था, और वो तेजी से भागा बाय एंड मेड फॉर द वुड, और उस जंगल की तरफ। ऑन केम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, और जब डॉग्स आए तो वो भी जो बैंक था उसको यानी कि बर्स्ट का मतलब होता है कि फटने लगना, कोई चीज फटना, मतलब कि उसने गुस्से से वो उस बैंक को वो क्रॉस कर रहे थे। लीप्ड द स्ट्रीम, और उन्होंने स्ट्रीम को लीप्ड किया, जंप किया स्ट्रीम के ऊपर से। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंट्समैन, और वो क्या किया उन्होंने, आगे डैशिंग, और डैशिंग का मतलब है यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वे में, अक्रॉस द फील्ड, फील्ड की तरफ, फॉलोड बाय द हंट्समैन, हंट्समैन उनको फॉलो कर रहे थे, साथ हंट्समैन थे और साथ डॉग्स थे, और वो बड़ी जो ना डैशिंग वे से उस क्रॉस करे थे उस स्ट्रीम को, जंप किए हुए। लीप्ड, और लीप्ड का मतलब जंप करके। तो 6 और 8 मेन, अंडरलाइन करें इस वर्ड को, 6 और 8 मेन, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, बल्कि आया भी था लास्ट टाइम। 6 और 8 मेन लीप्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर, क्लोज अपॉन द डॉग्स,
6 से 8 आदमी जो उन्होंने भी जंप किया देयर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस के जरिए से उन्होंने भी हॉर्सेस को जंप करवाया, क्लियर ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, ताकि वो डॉग्स के क्लोज हो जाए। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, जो हेयर था उसने कोशिश की कि वो क्या कर सके, फेंस को क्रॉस कर सके। गट थ्रू का मतलब है कि इससे रास्ता बना सके ना, लेकिन क्या हुआ, इट वॉज टू थिक, लेकिन जो फेंस था तो जंगला बना हुआ था, वो बहुत ज्यादा घना था। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, तो फिर क्या हुआ कि खरगोश ने जो शार्प जल्दी से उसने राउंड टर्न लिया, रोड की तरफ जो जा रही थी ना, रोड की तरफ जो रास्ता जा रहा था उसकी तरफ टर्न लिया जल्दी से, क्योंकि अब वो फेंस को तो क्रॉस नहीं कर सकी। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो ना लेट हो चुका था। द डॉग्स वर अपॉन हर, डॉग्स उस पर पहुंच चुके थे विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपनी खौफनाक आवाजों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक आवाज सुनी। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और ये उसका एंड था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड वीप्ड ऑफ द डॉग्स, उनमें से जो एक हंट्समैन था, एक घोड़सवार था, उसने रोड अप वो सवार हुआ एंड वीप्ड ऑफ द डॉग, और डॉग को वीप्ड ऑफ, वीप को मारा उसको, डॉग को, हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसेस, जो कि जिसने जल्दी ही हेयर को जो ना पीसेस में टॉर्न कर दिया, उसको चीर फाड़ दिया, पीसेस में डिवाइड कर दिया उसको। He held her up by the legs, torn and bleeding. उस डॉग he held her, उसने पकड़ा, उसमें से जो एक हॉर्समैन है उसने पकड़ा by the leg, torn and bleeding, उस लेग को जो कि हेयर की थी, उसकी जो लेग ब्लीड कर रही थी उसको पकड़ा। एंड ऑल जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज, तो सारे जो जेंटलमैन थे वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देने लगे। अब यहाँ ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक साइट बताई गई है कि किस तरह एना सेवल ने डिस्क्राइब किया है, डिपिक्ट किया है कि उस एज में 18 जो ईयर था उसमें किस तरह लोग क्रियोलिटी के साथ जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे उनको, मासूम जानवरों की जान लेके खुशी का वो मुजाहरा करते थे। तो ये एक्चुअली जो राइटर है वो हमें ये बताना चाह रही है कि ये बहुत ही ह्यूमैनिटी के सख्त खिलाफ है। और अगर हम इस्लामिक वे से भी देखें तो इसमें भी ये है कि जानवरों के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडरली हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, सॉफ्टली करना चाहिए। वो भी हमारी तरह, उनके भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, तो उनको जस्ट अपने फन के लिए या अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं मारना चाहिए। जस्ट हमें थोड़ी देर की इंजॉयमेंट के लिए हमें उनका खून नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जो हेयर है उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर हाउंड्स ने और हंट्समैन ने उसको पकड़ लिया और इस तरह उसका खात्मा हो गया। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने ही, इसमें से जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगेंगे आप उसके मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कुछ वर्ड्स खुद भी लोकेट कर सकें। एवरीथिंग is not given to you, you should also do something for your understanding. So if you understand well, then you can of course do better and can understand and the whole story. You can also give the question answer by your own effort, because if your text is clear, then everything is clear to you. नंबर 1 है जो फेंस है, ओवरहैंग का मतलब पार्ट ऑफ समथिंग दैट एक्सटेंड, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाना, कोई चीज फैल जाना। ब्रूक स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी जो उसको कहते हैं। फ्राइट का मतलब है खौफ है, फियर है। रश का मतलब है जल्दी से, और लीप का मतलब है जंप करना, छलांग लगाना। डैशिंग का मतलब है एलिगेंट और अट्रैक्टिव। और फेंस का मतलब आपको बता चुकी हूँ, जंगला, ठीक है। और अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग घरों में भी फेंस होते हैं। इसके अलावा श्रीक, श्रीक श्रीक होता है चीख, बहुत जोरदार चीख या दर्द भरी चीख मारना। डर के खौफ के मारे जो हम बाद दफा चीख मारते हैं उसको कहते हैं। वीप्ड ऑफ का मतलब है कि टू पुल समथिंग वेरी रैपिडली, कि किसी चीज को बहुत जल्दी से
पुल करना, धकेलना या जल्दी से उसको ऐसा करना कि ज़र्ब लगाना कि वो जल्दी जल्दी मूव करे। आई थिंक इसमें बताया गया है कि किस तरह फिर वो जो डॉग्स थे उन्होंने किस तरह हेयर को चेज किया, फिर उसको टोर किया पीसेस में उसको, और फिर उसके बाद जो हॉर्समैन थे उन्होंने किस तरह इस पे खुशी का इजहार किया। और दिस इज अ वेरी फ्राइटफुल सिचुएशन। एज फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए तो आई वॉज सो अस्टॉनिश्ड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वट what was going on by the brook. But when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were down. One was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water covered with mud. The other lay quite still. एज फॉर मी वो हॉर्स कह रहे, कॉल्ट कह रहे कि मेरे लिए जो था ना ये बहुत एस्टॉनिशिंग साइट है, अमेज कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि ये क्या है। बट दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रूक, के मैं मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है ब्रूक के ऊपर, यानी कि स्मॉल स्ट्रीम के ऊपर क्या होने जा रहा था, मुझे नहीं पता था। बट व्हेन आई डिड लुक देयर, जब मैंने वहां देखा तो एक सैड साइड थी, बहुत अफसरदा मंजर था। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, दो जो फाइन अच्छी क्वालिटी के जो उम्दा घोड़े थे ना वो डाउन, वो नीचे पड़े हुए थे। वन वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक था ना वो स्ट्रगल कर रहा था स्ट्रीम में। एंड दी अदर वाज ग्रोनिंग, और जो दूसरा था ना वो ग्रोन का है। ग्रोनिंग का मतलब पेनफुल क्राई, यानी कि पैनिक वे में चीख रहा था ग्रास पर। वन ऑफ द राइडर वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एक जो राइडर था वो भी गिर गया था ज़्यादा, जब वो इतना तेजी से गलॉप कर रहा था तो वो भी नदी में गिर गया। और वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, और वो पानी से निकल रहा था कवर्ड विद मड, जो मिट्टी के साथ, उसके जो ना मट्टी लगी हुई थी जाहिर है जब वो नदी में गिरा। तो द अदर लेक वाइट स्टिल, जो दूसरे थे वो उधर वाइट स्टिल, अब उसी तरह बिल्कुल उसी तरह स्टिल पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। हिज नेक इज ब्रोकन सेड माई मदर, उसकी जो गर्दन है वो टूट चुकी है। एंड सर्व हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉर्ट्स, और एक कॉर्ट ने कहा कि वो ऐसा ही, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आई थॉट द सेम, मैंने भी ऐसा ही सोचा। बट माई मदर डिडंट जॉइन विद अस, लेकिन मेरी माँ ने हमें ज्वाइन नहीं किया, यानी कि हमारी माँ ने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया। जो हमारे सीनियर कॉल्ट्स थे वो ज़रा ज़्यादा हमसे जानते थे। यंग कॉल्ट्स वो कहते हैं कि इसके साथ, इस आदमी के साथ सही हुआ जिसकी गर्दन टूट गई है। अब जो दो थे ना वो उसी तरह पड़े हुए थे। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना विद मड दी अदर ले, जो दूसरे थे वो उधर ही क्वाइट स्टिल, यानी कि एक तो नदी से निकल रहा था लेकिन दो उधर ही पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी गर्दन टूट चुकी थी। और मेरी माँ ने कहा, तो इसमें से एक जो हमारे कॉर्ड्स हैं उनमें से एक ने कहा कि इसके साथ यही होना चाहिए, एंड सर्व हिम राइट टू, और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आई थॉट द सेम, और मैंने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि इसने जो है ना बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन मेरी माँ ने हमसे इत्तेफाक नहीं किया। वेल नो शी सेड यू मस्ट नॉट से दैट, मेरी माँ ने कहा कि नो नहीं, शी सेड उसने कहा यू मस्ट नॉट से दैट, तुम आप लोगों को जरूर ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स, मैं एक ओल्ड हॉर्स हूँ, एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, मैंने बहुत कुछ देखा है और मैंने सुना भी है ग्रेट डील इस तरह के वाकयात को। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मेन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, मैन आई नेवर येट कुड मेक आउट, लेकिन मैं अभी तक ये बात नहीं समझ सकी कि वाई मेन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, कि ये आदमी इतने ज्यादा शौकीन क्यों है इस गेम के, इस स्पोर्ट के। एंड दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ, वो अक्सर अपने आप को भी हर्ट करते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस को भी स्पॉइल करते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और फील्ड्स को भी तबाह करते हैं। एंड ऑल ऑफ फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग दैट कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, और वो तमाम जो उधर वाइल्ड एनिमल हैं जैसे हेयर है, फॉक्स है और जो स्टैग हैं, ये जो हैं इनको वो किसी और वे से भी तो यूज कर सकते हैं ना, कि मोर इजीली सम अदर वे, यानी कि हम इन जानवरों को किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इनको मारें, चीरें फाड़ें या इनको जो है शिकार करें। हम इनको अच्छी तरीके से भी इनको
जू में रख सकते हैं, इनकी अच्छी सी मतलब एज अ पेट एनिमल इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना, जैसे हेयर है, इसको तो हम एज अ पेट एनिमल रख सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हम इतने अच्छे से एनिमल्स के साथ ये कुछ करें। बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड डोंट नो, बट हम सिर्फ हॉर्सेज हैं और हम नहीं जानते। अब आपने इसमें ये लास्ट पैराग्राफ था और ये एंड था। लास्ट जो पैराग्राफ है ये पूरी स्टोरी का बता रहा है कि किस तरह जो ना ये हंटिंग जो स्पॉट है ये किस तरह इसके डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं कि इससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। इस तरह आदमी अपने खुद भी मरते हैं, उसके अलावा फसलें भी तबाह होती हैं, हॉर्सेस भी तबाह होते हैं, जानवर भी तबाह होते हैं। लेकिन इसमें किसी चीज़ का भी एडवांटेज नहीं है और ह्यूमैनिटी के भी सख्त खिलाफ। तो ये पूरी स्टोरी जो एक हॉर्स ने अपनी बताई है और उसने एक जो ये नॉवल तो काफ़ी लेंथी नॉवल है, इनमें से सिर्फ एक चैप्टर लिया गया है और इस चैप्टर में हमें बताया ब्लैक ब्यूटी जो कि एक घोड़े का नाम है, ठीक है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। और स्टोरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होता है और एंडिंग में आपने देखा कि आखिर में फिर क्या होता है कि हेयर का शिकार करने के बाद जो आदमी हॉर्समैन होते हैं वो खुद भी हर्ट हो जाते हैं और अपने जो फाइन हॉर्सेस हैं वो भी उनके साथ हर्ट होते हैं। तो ये एना सेवल ये लास्ट में हमें ये बताना चाह रही हैं कि ये जो है बहुत ही पेनफुल है और एक क्रूअल एक्ट है और इसको ऐसा मतलब इस तरह की स्पोर्ट को कभी भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। और जो फ्यूचर में भी लोग अभी भी जो कुछ लोग जो हॉर्सेस को एज अ गेम और एज अ स्पोर्ट्स यूज कर रहे हैं उनको भी ऐसा नहीं करेंगे। अब आप लोगों की जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो वर्ड्स अंडरलाइन है इनके वर्ड्स मीनिंग आपने एक तो कॉपी पे लिखने हैं, साथ याद करने, और रीडिंग आपने 3 to 4 टाइम आपने करनी है हर पैराग्राफ की। हर पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपने उसमें से वर्ड टू वर्ड उर्दू करनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आने चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो ऑलरेडी कुछ वर्ड्स आपको गिवन हैं जिनके वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, मैंने बहुत डिटेल से आपको वर्ड्स मीनिंग दे दिए। तो होपफुल हूँ कि आपको ये इस लेसन से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो मज़ीद आपको फ़ायदा हो जाएगा। Now I will end my lesson. It is the end of the lesson, end of the chapter. On next lecture, I will give you the answer. We will do the question answer activity. Now this is the end, and hope that you will also understand this story and know what is happening and what are the moral of the story. The moral of the story is that we should treat the animals with kindness and with human way. Allah Hafiz. Please.